ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾਈ ਸੀ, ਨਮਰਤਾ ਸੀ, ਅਲੀਮਗੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਲੀਮਗੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਮਰਤਾਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਰ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ, ਹਲੀਮਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਮਰਤਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਮਰ ਆ। ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 33 ਬਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 12 ਵਚਨ। ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ चैप्टर 33 वर्स 12। दूसरा इतिहास और उसका 33 बाब उसका 12 वचन पढ़ना मांगे। उत्थे असी एक राजे के बारे पढ़ांगे। वो राजा जेड़ा सी वचन पढ़ना इस दे विच लिखिया, वो राजे ने अपने आप को बहुत ज्यादा अधीन किया। वो नमर हो गया परमेश्वर के अगे, वो हलीम हो गया। हाँ जी पढ़ लो। जब ਉਹ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ मनश्शे करके। मनश्शे वो राजे का नाम है। और ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो भी नम्र नहीं होना चाहता, हलीम नहीं होना चाहता। ये एक राजा सी, तुहानू पता जिहदे कोल बहुत वड्डा राज होवे, जिहदे कोल बहुत वड्डी सेना होवे, जिहदे कोल बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाले होण, उहदे वास्ते नम्र होना की है औखा। ਅਸੀਂ तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंसान है। ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी च नम्र नहीं होना चाहते, ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी च दूसरे के सामने नम्र नहीं होना चाहते, दूसरे के सामने हलीम नहीं होना चाहते, परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होना चाहते, परमेश्वर के सामने हलीम नहीं होना चाहते। ये एक राजा से, बोलो एक राजा से, और राजे वास्ते मुश्किल है कि वो किसी दे अगे, चाहे वो इंसान होवे ते चाहे परमेश्वर होवे, ओदे सामने नम्र होना ओदे वास्ते की है, मुश्किल है। सो मसीह दे विच प्यारे, जब ਅਸੀਂ ਗੱਲ हलीमी ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नो, मैं इस धरती उत्ते मनुख की गल की। सो मैं तुहाडी जानकारी को बताउंदे होए तुहानू दसना चाहना है, जदों असीं गिणती की किताब 12 बाप ते ओदा 3 वचन पढ़दे हां कि उत्थे मूसा दा जिक्र आउंदा है ते मूसा दे बारे लिखिया गया है आते वो मर्द मूसा सारे आदमियों नालों जेड़े पृथ्वी के उत्ते सन बहुत अधीन सी। परमेश्वर का पाक कलाम मूसा की जिंदगी के बारे गवाही दे रहा है कि वो मनुख सारे मनुखों के नालों बहुत नम्र सी, बहुत अधीन सी। ऐसे करके कि परमेश्वर ने उसनु अपने लोगों को छुड़ाने वास्ते भेजा, ऐसे करके कि परमेश्वर ने उसको चुनिया, ऐसे करके कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उसको बुलाया। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ जे तुसी प्रभु के कामां दे विच परमेश्वर के सेवकां दे नाल, परमेश्वर के लोकां दे नाल अगे वधना चाहुंदे ने, जे तुसी चाहुंदे ने तुहाडी जिंदगी दे द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बचने जाण, जे तुसी चाहुंदे ने तुहाडी जिंदगी दे द्वारा बहुत सारे परिवार बचाए जाण, जे तुसी चाहुंदे ने तुहाडा परमेश्वर तुहानू अपनी बाजू वधा के पड़े ते अपने काम दे ते अपनी सेवा दे ते उस तो पहला तुहाडी जिंदगी दे अंदर मूसा दे समान तुहानू सब तो पहला नम्र होने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब ਅਸੀਂ गिनती की किताब 12 बाप ਦਾ 3 वचन पढ़ते हैं, ਉੱਥੇ बड़े स्पष्ट तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ मूसा ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। कितनी बड़ी गल आ परमेश्वर लिख रहा है, कितनी बड़ी गल आ परमेश्वर कह रहा है, कितनी बड़ी गल आ परमेश्वर दस रहा है कि ओदे समय दे विच, मूसा दे समय दे विच हजारां हजारां दे विच लोग धरती दे उत्ते सी। मूसा दे समय दे विच हजारां हजारां दे गिणती दे विच लोग सी, पर उन्हां सारियां तो वध नम्र ते हलीम इंसान मूसा सी। और मूसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਮਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, मिस्र देश का राजकुमार सी, पर फिर भी लिखा गया है वो धरती उत्ते जितने भी मनुख सी उन्हां सबना तो की सी नमर सी। मसीह विच प्यारिओ, अज दे इस वर्तमान समय दे विच आत्मा दा ये फल बहुत सारी घट लोकां दी जिंदगी दे विच दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि असीं बाहर किसी दे सामने नमर होना है,
कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ दूसरा इतिहास 33 बाब ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। और ये यरूशलेम जड़ा है ये परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का शहर है कि यरूशलेम दे विच रहने वाले लोग परमेश्वर दे लोग सी, परमेश्वर दी प्रजा सी। पर अजी जिंदगी दे विच गड़बड़ आ गई। की आ गई? परमेश्वर ने इन्हू छोटी उम्र दे विच राजा बना दिता। परमेश्वर ने छोटी उम्र दे विच इस नू राजगद्दी दे दी। पर इसकी जिंदगी दे विच एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो प्रॉब्लम पता की सी? जेड़े काम परमेश्वर को पसंद नहीं सी वो काम इसने करने शुरू कर दिए। जेड़े रस्ते दे उत्ते जेड़े रस्ते परमेश्वर को पसंद नहीं सी उन्हां रस्ते दे उत्ते इसने चलना शुरू कर दिया। जेड़ियां गल्लां परमेश्वर दी नज़रां दे विच घिनौणियां सी, जेड़े काम परमेश्वर दी नज़रां दे विच घिनौणे सी, ओही काम ए राजे ने अपनी जिंदगी दे विच अपने राज दे विच करने शुरू कर दिते। उसने उन्हां कौमां दे घिनौणे कामां वांगू जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियां दे अग्गों कढ दिता सी, यहोवा दी निगाह विच बदी कीती। जदों इंसान परमेश्वर दी मर्जी तो हट के अपनी मर्जी करता है, जदों इंसान परमेश्वर के दसे हुए राह नूं छड्ड के अपने रस्ते ते चलदा है, जदों इंसान परमेश्वर की मर्जी तो बिना अपनी मर्जी नहीं ते शैतान की मर्जी नूं पूरा करता है, तद वो सारे काम परमेश्वर दी नज़रां दे विच एक बदी बन जांदे, एक बुराई का रूप धारण कर लैंदे। और ये 12 सालों का सी, परमेश्वर ने इसनूं राजगद्दी दी, इसनूं राजा बनाया और इसने की कीता वो काम शुरू करने कर दिते जेड़े परमेश्वर दी नज़रां दे विच उसनूं पसंद नहीं सन। उसने कीता की ए राजा जेड़ा मनुष्य राजा जेड़ा सी, इसने किहड़े काम कीते जेड़े परमेश्वर नूं चंगे नहीं लगे। अज सानूं भी अपनी जिंदगी दे विच ध्यान देने की जरूरत है। असी अपनी जिंदगी दे विच किन्ना रस्ते ते चल रहे हैं, असी अपनी जिंदगी दे विच किन्ना कमां नूं कर रहे हैं, असी अपनी जिंदगी दे विच कैसा बिहेव अपना दूसरे के प्रति रख रहे हैं, सानूं जानने की जरूरत है। हो सकता है अज असी भी वो काम करते होइए, उन्हां रस्तियां ते चलदे होइए, वो सोचां नूं सोचदे होइए, साडे दिल च मन च वो विचार आउंदे होण जेड़े परमेश्वर नूं पसंद नहीं। इसने की कीता? उसने फिर उच्चियां थावां बनाईयां, बवालां दे लई जगवेदियां बनाईयां अते टुंड मुंड देवी देवतियां अते सारे स्वर्गीय लश्करां मत्था टेकिया कि उन्हां दी पूजा कीती। परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं यह हुक्म दिता सी और मूसा के द्वारा भी जो 10 हुक्म दिते गए उत्थे भी लिखा गया मेरे तो बिना तुहाडा कोई भी दूजा परमेश्वर होना नहीं चाहिए। और मसीह दे विच प्यारिओ ओही हुक्म आज परमेश्वर तुहानू भी दे रहा है कि मेरे तो बिना
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सर्वव्यापक, मैं सर्वज्ञानी, मैं सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तुहाडा परमेश्वर हां। तुहाडीआं जिंदगियां दे अंदर मेरे तो इलावा दूजा कोई परमेश्वर होना नहीं चाहिए। और एक मनचे राजा जिहड़ा सी, इहदे बाप दा नाम दाऊद सी। ਇਹ दाऊद ਦਾ बेटा सी। दाऊद तो बाद से इनू ए राजगद्दी मिली और इसके बाप जिहड़ा दाऊद सी उसके बारे परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है। परमेश्वर कहंदा ओ मेरी मन की मर्जी के अनुसार चलदा रिया। चाहिए ते इसनू भी इस तरह सी कि जे तेरा बाप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसने जीवन गुजारिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने जीवन गुजारिया है, ते हुण इसनू भी चाहिए सी कि मैं भी अपने बाप के समान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला बना। पर मेरी जिंदगी दे विच प्रॉब्लम आ गई। इन्हें वो सारे काम कीते, उच्चियां थावां बनाईयां, दूजियां देवतियां दीयां मूर्तियां रख दित्तियां उत्ते। बुआल उस समय का एक देवता सी। इन्हें बुआल देवते दे लई जगवेदियां बनाईयां अते टुंड देवी देवतियां बनाईयां ते स्वर्गी लश्करां नूं मत्था टेकिया ते उन्हां दी की पूजा कीती। मसीह दे विच प्यार असीं अपनी जिंदगी ते ध्यान करिए। परमेश्वर ने इस राजा इस करके नहीं बनाया सी कि ये मैनू छड़ दे। परमेश्वर ने इस राजा इस करके नहीं बनाया सी कि ये मैनू भूल जावे। परमेश्वर ने इस राजा इस करके नहीं बनाया सी कि ये अपनी मर्जी करे, दूजे देवतियां नूं मत्था टेके, दूजे देवतियां दीयां मूर्तियां खड़िया करके उन्हां दे सामने अपना सिर झुकावे। परमेश्वर ने ते इस प्लान पे इस योजना दे नाल इस राजा बनाया सी कि केवल ये मेरी मर्जी को पूरा करे, केवल ये मेरी आराधना करे, केवल ये मेरी उपासना करे। असीं अपनी जिंदगी ते ध्यान करें। हो सकता है परमेश्वर ने तुहानू इस साल इस करके दिता है कि तुसी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, पर आज भी तुसी अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे जी। हो सकता है 2023 साल परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी में इस करके दिता है कि तुसी उसकी आवाज सुनो, पर आज भी तुसी दूसरे की आवाज सुन रहे जी। हो सकता है परमेश्वर ने एक नवा साल तुहाडी जिंदगी दे विच इस करके दिता है कि तुसी परमेश्वर के भवन दे विच आके ओदे लोकां दे नाल मिल के और ओदे लोकां दे नाल मिल के ओदी इबादत करो, ओदी बंदगी करो, ओदी आराधना करो, उसकी उपासना करो। पर आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की वो मर्जी नूं करन दी बजाय परमेश्वर दे घर नूं छड्ड दिंदे ने, उस नूं भुल जांदे ने। जदों उन्हां दा दिल करदा है वो प्रभु दे घर विच आउंदे ने, जदों उन्हां दा दिल करदा है उदों प्रभु दे घर दे विच नहीं आउंदे। मसीह दे विच प्यारे उस गल नूं समझण दी कोशिश करो। हो सकदा है इह साल तुहानूं तां दित्ता जावे कि तुसी परमेश्वर की आवाज को सुनो। ये परमेश्वर के राह को पटक गया, इसने परमेश्वर के राह को छाड़ दिता, इसने परमेश्वर के हुक्मां को मनना छाड़ दिता। इथों तक एक पहली गल है ना कि उन्हें होर देवतियां बनाया, होर देवतियां दी मूर्तियां बनाईयां, उन्हां दी पूजा की। इहदे तो भी वड्डी बदी उसने की, इहदे तो भी वड्डी बुराई उसने की। वो की लिखिया उसके बारे लिखिया इथों तक उन्हें परमेश्वर के भवन दे विच लिया के मूर्ति नूं खड़िया कर दिता। अगे उसने बन हिन्नोम दी वादी विच अपने पुत्रां नूं अग दे विचों नहीं लगाया। पुठे काम करन लग पिया, जेड़े काम परमेश्वर दी नज़रां दे विच सही नहीं सही वो काम करन लगा। इन्हें अपने पुत्रां नूं अग दे विचों लगाउणा शुरू कर दिता। दूजियां देवतियां नूं प्रसन्न करन वास्ते, दूजियां देवतियां नूं खुश करन वास्ते। मसीह दे विच प्यारो ओ जमीन आसमान नूं बनाउण वाला परमेश्वर तुहाडा ते मेरा साडा सच्चा ते जिंदा परमेश्वर सानू कदे भी इस तरह दे हुक्म इस तरह दी आज्ञावां नहीं देंदा जेड़े काम संसार दे लोग करदे ने। ऐना ही नहीं, उस तो बाद से उन्हें जादू टूणे करने शुरू कर दिते, फाड़ा पाउणियां शुरू कर दित्तियां अते लिखिया मित्र भूतां दे नाल मेल रखना शुरू कर दिता।
ਦਿਓ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨੱਚੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਆ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਤੇ ਭੂਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਪ ਤੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਜਾੜਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੂਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 60-70 ਸਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰਵ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਭੜਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀ? ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਵੀ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਚਨ, 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 33 ਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। हाँ पढ़ दो जरा भी मिल जाए। मनशेष ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की। हाँ जी, वो राजे ने यरूशलेम से यहूदा के लोगों को इत्थों तक भड़का दिता। पंजाबी च बड़ा वधिया लिखिया है, पढ़े जी आप ते वो भटके उन्हें सारे फर्जां नूं भी की किया, गुराहे पा दिता। समझण दी कोशिश करो, ये राजा आप बुरे कामों के विच लगा, इन्हें दूजियां भी सारी प्रजा भी कर दिता, राहे पा दिता। फिर परमेश्वर का क्रोध इत्थे भड़किया। जदों इन्ना कुछ होने के बावजूद जदों असीं 10 वचन पढ़दे हां उत्थे लिखिया तां फिर यहोवा ने मन छा के उसके लोकां दे नाल गल्लां कीतियां, पर उन्हां ने गौर न कीता, उन्होंने इग्नोर कर दिता, उन्होंने अनसुनी कर दी। परमेश्वर नूं ये सारे काम बर्दाश्त नहीं हो रहे सी, परमेश्वर नूं ये सारे काम चंगे नहीं लग रहे सी कि एक राजा जिसनूं मैं नियुक्त कीता है, एक राजा जिसनूं मैं राज दिता है, वो आप भी बुरे काम करे, वो आप भी बुराई विच जावे, वो आप भी दूजियां देवतियां दे के मत्था टेके ते नाल दी नाल सारी प्रजा नूं भी दूजियां देवतियां दे के मत्था टेकण दे वास्ते मजबूर कर देवे, कुराहे पा देवे। उस तो बात की होया ध्यान दिओ मसीह दे विच प्यारिओ, इंसान जदों अपने पाप तो मुड़दा नहीं है, इंसान जदों अपनी बुराई नूं छड्डदा नहीं है, इंसान जदों अपने भैड़े राह नूं छड्डदा नहीं है, इंसान जदों अपने बुरे राह नूं छड्डदा नहीं है, फिर परमेश्वर अपने संतां दे द्वारा, अपने दासां दे द्वारा, अपने लोकां दे द्वारा, अपने आत्मा दे द्वारा उन्हां दे नाल गल्लां करदा है, पर इंसान फिर भी उसनूं समझदा नहीं है। परमेश्वर ने फिर इन्हां दे नाल गल्लां कीतियां,
33 बाब का 10 वचन जो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने वचनों को कलिया, अपने लोगों को कलिया, पर इन्हां दे बारे लिखिया है, इन्हां ने उहदे ते गौर कीती नहीं, इग्नोर कर दिता। अज भी परमेश्वर दे संत, परमेश्वर दे दास, परमेश्वर दे लोग किन्ने लोकां नूं परमेश्वर दी आवाज़ सुनना चाहुंदे ने, पर किन्ने परमेश्वर दे सेवक उन्हां नूं कहंदे ने तुसीं अपनी जिंदगी परमेश्वर दे हत्थां विच दे देवो, वो भी अनसुनिया कर दिंदे ने, वो भी जवाब बदले दे विच कहंदे ने जदों परमेश्वर दी इच्छा होवेगी उदों असीं तौबा करांगे, जदों परमेश्वर दी इच्छा होवेगी उदों असीं बुरे राह छड्डांगे, जदों परमेश्वर दी इच्छा होवेगी उदों असीं पैड़े कम्मां नूं छड्डांगे। मसीह दे विच प्यारिओ, परमेश्वर दा वचन ते इस तरह कहंदा है कि मुक्ति दा दिन अज ही आ, बुरे राहां नूं छड्डण दा दिन अज ही आ, पैड़े राहां नूं छड्डण दा दिन अज ही आ, अपने पापां तो मुड़न दा दिन अज ही आ। परमेश्वर ने इन्हां दे नाल गल्लां कीतियां, की कीतियां? गल्लां कीतियां। उच्ची बोलो जी, की कीतियां? परमेश्वर ने इन्हां दे नाल गल्लां कीतियां। की गल्लां कीतियां? भी इह काम की करो, छड्ड दो। ते अज परमेश्वर तुहाडे नाल भी गल्लां कर रहा है, ध्यान दिओ। अज परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल भी गल्लां कर रहा है अपने वचनां दे द्वारा। जे किते तुहाडी जिंदगी च कोई बुराई आ, कोई कमी आ, कोई घटी आ, ते ओनूं की करो? छड्ड दो। इस तरह ना होवे परमेश्वर दा क्रोध भड़के। मसीह दे विच प्यारिओ, जदों परमेश्वर दा क्रोध भड़कदा वा फिर की हुंदा? अगे सुणो। जदों परमेश्वर नूं गुस्सा आउंदा वा फिर की हुंदा है? जदों परमेश्वर इंसान दे विरोध विच हो जांदा है फिर की हुंदा है? जदों असीं 10-11 वचन पढ़ते हैं, 11 वचन दे विच फिर परमेश्वर ने अपना काम करना की कर दिता? शुरू कर दिता। जदों लोकां ने आवाज़ नहीं सुनी, जदों लोकां ने प्रभु की आवाज़ नूं नहीं सुनिया, समझाउण दे बाद भी फिर परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिता। सब तो पहले उन्हें किहड़ा काम कीता? मसीह दे विच प्यारिओ, अज भी इंसान जिहड़ा है परमेश्वर की आवाज़ नूं सुणदा नहीं है। जदों असीं 11 वचन पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया, इसलिए यहोवा ने असूर दे पातशाह ते सैनापतियां नूं उन्हां उत्ते चढ़ा लिआंदा। एक रोज राजे नूं परमेश्वर ने हुक्म दिता, ओ राजे उत्ते जाके की कर? चढ़ाई कर, उन्होंने की कर? जाके गुलाम बना ला। परमेश्वर ने तेनू राज दिता है, परमेश्वर ने तेनू राज कदी दिती आ जे तू परमेश्वर के डर विच रहेगा, जे तू परमेश्वर के भय विच रहेगा, जे तू परमेश्वर के दसे हुए राहां ते चलेगा ते तेरा राज स्थिर रहेगा। पर जिस दिन तू परमेश्वर के कम्मां नूं, ओहदे राह नूं छड्ड दिता, उस दिन दूजा राजा कोई आएगा, तेरे ते चढ़ाई करेगा ते तेनू गुलाम बना लवेगा। अज के समय दे विच भी जे तुसी प्रभु दे विच जे, प्रभु दी संगत विच आउण वाले जे, प्रभु दी इच्छा के अनुसार चलण वाले जे, ते फिर तुसी अपनी जिंदगी च आराम पाओगे, अपनी जिंदगी च शांति पाओगे, अपनी जिंदगी च सुख के दिन महसूस करोगे। पर जे तुसी प्रभु की आवाज़ नूं ना सुनिया, छड्ड दिता, त्याग दिता, रद्द कर दिता, वो वैरी शैतान नूं आग्या देगा, फिर शैतान तुहाडे विरोध विच आ जाएगा। फिर की होया? जदों अशूर दा पातशाह आया, की कीता उन्हें? आके उहदे उत्ते की कीता? उन्होंने अपने वस विच कर लिया। किन्ने घल्लिया? हुक्म किन्ने दिता है? परमेश्वर ने। अशूर दे पातशाह नूं परमेश्वर ने कहा, जा जाके उहदे उत्ते की कर? चढ़ाई कर। और अशूर दा पातशाह आया, उन्हें चढ़ाई की। सब तो पहला की कीता? की करता? तुहानूं पता, जदों एक राजा दूजे राजे ते चढ़ाई करता है, तो जदों राजे नूं फड़दे की कीता जांदा है? फड़ के बन लिया जाता है, ਉਹਦੇ पैरों च बेड़ियां पा दित्तियां जांदियां सी, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ हालात ਉਹ हो गई। मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ जिन्ने भी लोग प्रभु की आवाज़ नहीं सुन रहे, हो सकता है उन्होंने दी आने वाले दिनों के विच भी मनशा राजे के समान हालात हो जाए। पर इस हालात तो बचन का इको ही कारण है, इस बुरी दशा तो बचन का इको ही कारण है। फिर की होया? अशूर का बादशाह आया, हथ घड़ियां लाइया, बेड़ियां दे नाल बन्निया, अपने देश च लै गया। कित्थे लै गया? अपने देश च। अपने देश च लै गया, गुलाम बना के। एक राजा गुलाम बन गया, एक राज करने वाला गुलाम बन गया। कारण यही सी, प्रभु की आवाज़ नहीं सुनी। कारण यही सी, प्रभु के राह नहीं चलिया। कारण यही सी, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलिया, या फिर अपने बाप दादियां के समान
अपनी मर्जी की, जो चंगा लगा वो कीता ते गुलामी दे विच चलिया गया। 12 वचन दे विच बड़ी जबरदस्त गल लिखी है। 12 वचन जदों पढ़दे हैं ना, पढ़दे हो 12 वचन जदों पढ़दे तो बड़ी जबरदस्त गल लिखी आ। लिखिया पढ़ो पढ़ो। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। हाँ जी, बस की फायदा, गुलाम बन गया, हाथ बनवा ले, पैरों च पेड़ियां पवा लिया, औंकड़ विच पै गया, मुसीबत विच पै गया। हुण किहदा चेता आया? हुण किहदा चेता आया? परमेश्वर दा हुण चेता आउण डिया। उदों सच्चे परमेश्वर दा चेता नहीं आया, उदों जिउंदे परमेश्वर दा चेता नहीं आया। हुण जदों दुख च पिया है, मुसीबत च पिया है, गुलामी च गया है, कैद खाने विच गया है, हुण रब चेते आ गया। अज भी दुनिया दारी के लोगों के वाल वेखो, जो उन्होंने जिंदगी सुख के नाल चलती होंदी आ, जो उन्होंने जिंदगी दे विच तंदुरुस्ती होंदी आ, जो उन्होंने जिंदगी दे विच सारा कुछ समूथ चल रहा होंदा वा, उदों उन्होंने परमेश्वर का चेता आउंदा नहीं। परमेश्वर का चेता भला कदों आउंदा वा? ये राजे जो शैतान ने हथ भी बन्नते, शैतान ने पैर भी बन्नते, जेल दे विच सुੱਟਦਾ, फिर किहदा चेता आया? मैं कहना धन्नवाद मेरे रब दा, दुख विच जाके उन्होंने किहदा चेता आ गया। कईयां नूं तो दुख च जाके भी चेता नहीं होंदा। कईयां नूं कहीदा भैन जी, कई जदों अपने दुख तकलीफां बीमारियां दसदे उन्होंने कहीदा जी तुसीं रब दे घर च आओ। ना जी ना, असीं रब दे घर च नहीं आ सकदे, साडा तो धर्म ही हो रहा, साडा तो मजहब ही हो रहा, असीं ते होर किसे रब नूं मनदे आ। इंसान दुखों में पैण तो बाद भी, परेशानियों में पैण तो बाद भी, मुसीबतों में पैण तो बाद भी परमेश्वर नूं चेते करदा नहीं। पर इस राजे ने जदों औकड़ विच पिया ते इहने परमेश्वर की मिन्नत कीती ते अपने प्यो दादियां दे परमेश्वर दे सन्मुख अपने आप नूं अधीन कीता। पढ़ो अगे वचन पंजाबी च, यही 12 वचन पढ़ दिओ। जदों औकड़ विच पिया ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਮਰਤਾਈ ਦੀ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अधीन हो गया। की हो गया? नम्र हो गया। की हो गया? हलीम हो गया। कदों? जदों दुख च गया। हो सकता है कि साडे विचों बड़े दुख च होण, जे अपने दुख तो आज़ाद होना चाहते जे, ਜਿਹੜੇ शैतान ने तुहाडे हथ बन्नते जिस तो आज़ाद होना चाहते जे, ਜਿਹੜੇ शैतान ने तुहाडे पैर बन्नते जिस तो आज़ाद होना चाहते जे, कैद खाने विचों आज़ाद होना चाहते जे, अपने दुखों परेशानियां विचों आज़ाद होना चाहते जे, ते हलीम हो जावो। ये राजा भी की हो गया? हलीम हो गया। ते फिर परमेश्वर की इच्छा ते मर्जी देखो, जदों ही ये हलीम हो गया, जदों ये नम्र हो गया, जदों ही इन्हें प्रभु अगे बेनती की, किन्ने साल बुरे काम करता रहा होगा, किन्ने साल प्रभु को दुख देता रहा होगा, किन्ने साल प्रभु की मर्जी के विरोध में चलता रहा होगा। और जदों इन्हें मिन्नत की, जदों इन्हें बेनती की, लिखिया जदों अधीन हो गया, उसने उसके अगे प्रार्थना की, अधीन होके प्रभु के अगे प्रार्थना की, ओदे तरले मारे, ते फिर की होया? प्रभु ने ओदी आवाज नूं की कर लिया? सुन लिया। प्रभु ने उस वेले जदों उसने अपनी गलतियां, अपने गुनाह, अपने पाप, अपने अपराध परमेश्वर के सन्मुख मन ले, ओदियां मिन्नतां कीतियां, अधीन हो गया, प्रार्थना की, तरले मारे, परमेश्वर ने ओदे तरले नूं सुन लिया ते फिर उन्होंने अशूर दे राजे नूं की कर दिता? आजाद कर दिता। फिर परमेश्वर ने ओदे ते तरस कीता, फिर परमेश्वर ने ओदे ते दया दिखाई ते फिर दोबारा पहले राजा सी ते राजे तो गुलाम बन गया। जदों परमेश्वर ने दी प्रार्थना नूं सुन लिया, जदों वो नम्र हो गया, जदों वो अधीन हो गया, फिर परमेश्वर ने उन्हें गुलाम तो दोबारा राजा बना दिता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह दे विच प्यारो, अज परमेश्वर इस चाहुंदा है, हो सकदा तुहाडी जिंदगी
बड़ी चंगी सी, बड़ी वधिया सी, पर तुसी उस नूं छड्ड दित्ता, अपनी इच्छा के अनुसार चले, अपनी मर्जी के अनुसार चले, बुरे काम कीते, संसार दे नाल मित्रता कर लई, संसार के कामां विच फस गए। पर जे तुसी अपनी जिंदगी दे विच दुख नूं महसूस कर रहे जे, परेशानी नूं महसूस कर रहे जे, बोझ नूं महसूस कर रहे जे, पाप नूं महसूस कर रहे जे, ते अज उस राजे दे समान तुसी भी परमेश्वर दी मेहनत करो, तुसी भी परमेश्वर दे सामने अधीन हो जाओ, तुसी भी उहदे सामने तरलियां दे आ जाओ, और वो परमेश्वर तुहाडे ते दया दिखाएगा, वो परमेश्वर तुहाडे ते तरस करेगा, तुहाडी जिंदगी दे विचों सारे दुख, सारियां मुसीबतां, सारियां परेशानियां नूं आनंद, खुशी दे विच बदल देगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह दे विच प्यारिओ, फिर इस नूं परमेश्वर ने राजा बना दिता। फिर इसने की कीता, फिर इन्हें अपनी जिंदगी च सुधार लैन दा। उस तो बाद जदों असीं 16 वचन पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया उसने यहोवा दी जगवेदी दी मुरम्मत करवाई, सुख सांभ दीआं बलियां चढ़ाइयां, धन्नवाद दे चढ़ावे चढ़ाए, ते इस्राएल दे सारे लोकां नूं जिन्हां नूं उसने कुराहे पाया सी, पुठे कामां विच लाया सी, बुरे कामां विच लाया सी, माड़े कामां विच लाया सी, उन्हां नूं फेर हुक्म दिता भी हुण उस जिउदे परमेश्वर दी आराधना करनी आ, हुण उस सच्चे परमेश्वर दी बंदगी करनी आ, हुण उस सच्चे परमेश्वर दे पिछे चलना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीह दे विच प्यारिओ, ये एक राजे दी जिंदगी दे बारे असीं पढ़िया, जिसनों परमेश्वर ने 12 साल की उम्र के विच राजा बना दिता। जदों ये दोबारा राजा बनया, इन्हें अपनी जिंदगी चो वो गलतियां कट दित्तियां। जदों परमेश्वर ने इहदे ते अपनी दया ते कृपा दिखाई, इहदी प्रार्थना बेनती सुन लई, फिर इन्हें अपनी जिंदगी दे विचों दूसरे देवी देवते कट दिते, दूसरे भैड़े काम ते बुरे काम अपनी जिंदगी दे विचों कट दिते। फिर परमेश्वर ने इहदे ते दया दिखाई, फिर इन्हें सारी प्रजा दे लोकां नूं कहा, अज तो बाद च सारे ने ओ जिउंदे परमेश्वर नूं मनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीह दे विच प्यारिओ, उस तो बाद जदों असीं 20 बात पढ़दे हां, उत्थे लिखिया तां मनुष्य अपने पिओ दादियां दे नाल सौ गया। ये नहीं लिखिया भी वो मर गया, लिखिया सौ गया। जिहड़े परमेश्वर की इच्छा करके अपना जीवन गुजारते हैं, जिहड़े परमेश्वर की मर्जी करके अपना जीवन गुजारते हैं, जिहड़े परमेश्वर की सेवा करके अपना जीवन गुजारते हैं, वो कदे भी मरते नहीं हैं, वो सौ जाते हैं। बोलो हालेलुया। मसीह दे विच प्यारिओ, जे तुसीं मसीह विच आ जाओगे, मसीह दे कमां नूं करोगे, मसीह दी सेवा नूं करोगे, और इस संसार दे विच जिहड़ियां आत्मावां नाश हो रहीआं ने, जिहड़े पाप दे विच लोग ने, न्यू जनरेशन जिहड़ी आ, यूथ जिहड़ा पाप दे विच नशियां दे नाल, बुरे कमां बुरे राह ते चल के नाश हो रहा है, जे इस यूथ नूं, बुरे लोकां नूं, पाप दे नाल भरे होए लोकां दे जीवन बचाउण दे विच तुसीं प्रभु दे कोल आ जाओगे, प्रभु दे कामां नूं करन दी कोशिश करोगे, प्रभु दे काम करोगे, फिर तुसीं भी कदे मरोगे नहीं, तुसीं भी सौओगे। बोलो हालेलुया। इहदे बारे लिखिया, ये सारा कुछ करन तो बाद 55 साल राज करन तो बाद मरिया नहीं, लिखिया सौ। बाइबल च कई बार यह भी लिखा भी वो मर गए, पर ये बारे नहीं लिखा वो मर गए। क्यों? जिहड़े लोग प्रभु के हुक्मां नूं मनदे ने, प्रभु की इच्छा नूं पूरा करते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं, वो कदे भी मरते नहीं, वो सौंदे ने, वो सौ के फिर एक दिन जी उठते हैं। बोलो हालेलुया। सो मसीह दे विच प्यारिओ, ये सी राजे की गल, मनुष्य राजे की गल सी, जिसने अपनी जिंदगी दे विच पाप कीते, अपराध कीते, गुनाह कीते, पर उन्हां दा पछतावा कर लिया। अज मसीह दे विच प्यारे, तुसीं कोई भी क्यों ना हो, जे पिछले सालों दे विच, पिछले समय दे विच तुसीं प्रभु दे विरोध विच गए, प्रभु दे विरोध विच काम कीते ने, प्रभु दे विरोध विच तुसीं अपनी मन मर्जी नूं कीता है, कि तुहानूं भी चाहीदा है उस राजे दे समान अपने आप नूं प्रभु दे हत्थों विच दे दो, अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रभु नूं कहिए, प्रभु जिस तरह राजा नमर हो गया, वो तुहाडे अगे अधीन हो गया, तुसीं उहदे ते किरपा कर दित्ती, प्रभु मेरे ते भी किरपा करो। मेरी जिंदगी च भी कई पाप ने, कई बुरे काम ने, कई बुरे स्वभाव ने, मैं अपनी जिंदगी दे विच जो तुहानूं दुख देण वालियां गल्लां ने, उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विचों कढ दवां, मैं अपनी जिंदगी दे विचों बुरे कामां नूं, बुरे स्वभावां नूं कढ दवां, छड्ड दवां, तुहाडी किरपा मेरे ते भी हो जाए। और प्रभु जी, जिस तरह तुसीं फिर उस दिन नसीबां नूं बहाल कर दिता,
उसके जीवन को बहाल कर दिता, उसकी जिंदगी को बहाल कर दिता, उसके राज को बहाल कर दिता। उसी तरह प्रभु मेरे ते भी तरस करो, दया करो, मेरे नसीबां नूं भी बहाल कर दो, मेरी जिंदगी नूं भी बहाल कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ए साम लेंदा ना, ए साम लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। चुकिया है जिंदगी वाले बिटिया को मैं चुकिया है। दीवार बिटिया को मैं चुकिया है। जिंदगी वाले बिटिया को मैं चुकिया है। दिया तसल्ली जब दिल मेरा दुखिया 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 है। मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। ए साम लेंदा ना, ए साम लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जे तेरी दया ना हुंदी। विच प्रार्थना करांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। आई तुहाडे बच्चों एक बार फिर तुहाडे हत्थां 'ਚ सौंपदे हां। प्यारे खुदा प्रभु तुसीं बदली दा पूरा बोझ उठाया प्रभु। तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी। जो भी असीं अज वचन सुने उन्हां वचनां दे अनुसार जिंदगी गुजारन दे लई तुसीं कृपा करो। सचमुच प्रभु जी साडी जिंदगी जो बुरा सुभाव बुरा चाल चलन प्रभु जी तुसीं कर दो प्रभु जी। सानू सारियां दी कमियां पेटियां दूर करो, पवित्र करो प्रभु जी। सचमुच जिस तरह तुसीं पवित्र जे प्रभु सानू सारियां नूं पाक करो, पवित्र करो प्रभु जी। बुरियां भैड़ियां आदतां तुसीं छुटकारा दो प्रभु, कृपा करो प्रभु जी। तुसीं अज तक संभालिया चलाया तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद करदे। जो भी तुहाडे हजूरी च बेनती होए प्रार्थना कीतियां गईयां ने प्रभु तुसीं स्वर्ग च कबूल कीतियां। तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद करदे। जिन्ने बच्चे तुहाडे आए ने प्रभु जी जदों वापस जान तुसीं रास्ते विच इन्हां सबनां दी प्रभु निगाहां दे रखवाले करना प्रभु जी। तुहाडे आउण तक प्रभु जी तुहाडे नाल सदा बने रहण दे लई तुसीं अपने बच्चों की कृपा करना। डरदे कांदे होए तुहाडी हजूरी च आउण दे लई तुसीं कृपा करना। जो अज नहीं आ सके प्रभु उन्हां ते तुहाडी कृपा हो जाए, दया हो जाए प्रभु जी। इस प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हुण पिता परमेश्वर दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पवित्र आत्मा परमेश्वर दी संगति हुण तो लेके हमेशा दा प्रभु दे सारे संतां सेवकां दे नाल, इस भवन दे नाल, इस भवन विच आए हुए सब लोकां दे नाल हुण तो लेके हमेशा हमेशा तक होंदी रहे। आमीन। हालेलुया।